In this video, we will talk about significance of principles of management. In the first video, we saw introduction, meaning and definition of principle, meaning and definition of principles of management, nature of principles of management. In current video, we will see significance of principles of management. Following are some of the important principles of management. We will see one by one. The first and most important significance of principles of management is it provides useful insight to managers. Generally, principles of management helps the manager to understand the organization. It also helps to improve the understanding of the situation and problems. Once we get to know the problems, now we need to find out the solution to the same problem and handle the situation. We need to understand that these principles are outcome of experiments by many professionals. That's why these principles plays an important role in management of the organization. हम सबसे सिंपल वे में समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर समझना होगा तो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने होंगे. अगर एक बार हमें प्रॉब्लम्स समझ में आई तो हमें उसके सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे. और जनरली यह जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो एक्सपर्ट लोगों ने बनाए हुए होते हैं, इसलिए ये मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. It also provides the manager with useful insight into real world situation. Without these insights, it is difficult to frame policies of the organization. ये जो प्रिंसिपल्स है वो मैनेजमेंट को एक दूरदृष्टि देते हैं. मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड अवॉइड रिपीटिंग द सेम. इट ऑल्सो सेव टाइम by solving recurring problems quickly. It also increases managerial efficiency. हम हमारे जो गलतियां हैं उससे सीख लेते हैं और उसे न दोहराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वक्त बचता है. ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो रिपीटेड नेचर के होते हैं. रोज रोज वो प्रॉब्लम आते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल का उपयोग कर कर हम इन प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की टेक्निक सीख जाते हैं, जिसके वजह से हमारा समय भी बचता है और इसी कारण हमारी मैनेजरियल इफिशिएंसी भी बढ़ती है. सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है helpful in efficient utilization of resources. Every organization have two resources with them, that is physical resource and human resource. Physical resource means resources such as material, machine, money, etc. These resources are limited and that's why we need to use it carefully to achieve organizational goal. हर ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं. एक होता है फिजिकल रिसोर्स और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स. हमें इन रिसोर्सेस को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए क्योंकि ये जो रिसोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल हमें बहुत सोच कर करना चाहिए. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ऑप्टिमम यूज मीन्स use of resources in such a way that it will give maximum benefit with minimum cost. It also avoid wastages. Use of standard tools and machinery will help in increasing quality and productivity. It also increases efficiency of human resource. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी क्या? ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम होगी. इससे हमारे वेस्टेजेस भी कम होंगे. इसका उपयोग हमें ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी इंक्रीज करने में होगा. देयर इज नीड of maintaining discipline and healthy working environment in the organization. Healthy working environment helps to establish cordial relationship between management and employees. It helps
to increase the efficiency of the employees. This will help to reduce wastage of resources due to trial and error methods used in organization. जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप होता है, और अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो इसका अर्थ है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे वेस्टेजेस भी कम होंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड में वेस्टेजेस बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, उसलिए हम स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारे वेस्टेजेस कम से कम होंगे, जिसका ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस मीन्स सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजंस। डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। हम जो भी डिसीजन लेंगे वो फैक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए, कहीं सुनी बातों पर हमने डिसीजन नहीं लेने चाहिए। डिसीजंस मस्ट टेकन विद इन टाइम। Unnecessary delay may cost the organization. Decision must be realistic and achievable. Organizations need to take decisions which are measurable and can be evaluated in future. डिसीजन कैसे होने चाहिए? तो समयानुसार होने चाहिए, समय पर डिसीजन होने चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। अगर देरी होगी तो डिसीजन जो है उसका कोई उपयोग नहीं होगा। और ये जो डिसीजन है वो रियलिस्टिक होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए, उसी के साथ ये मेजरेबल भी होने चाहिए, यानी गिनने आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, बहुत का अर्थ कोई नहीं होता, इसलिए मैं अगर ऐसा कहूँ कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करूँगा तो ये मेजरेबल होगा। बहुत पढ़ाई करूँगा मेजरेबल नहीं होगा। जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए सोच समझकर और सही समय पर डिसीजन लेने चाहिए। While taking decisions, emphasis must be given to logic rather than on blind faith. Management decisions taken on the basis of principles are free from biases and prejudice. It trains the manager to handle the critical situation tactfully. जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो बहुत सोच समझकर लॉजिकल वे से लेने चाहिए। कोई ब्लाइंड फेथ हमें इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी बायस या प्रिजुडाइज, हम किसके बारे में कोई बायस रखकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन समझकर हमें डिसीजन लेने चाहिए। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डे बाय डे देयर इज इंक्रीज इन अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल. Social media is playing key role in increasing awareness. Organizations are not only look for maximum profit but also pay attention towards social responsibility. दिन ब दिन लोगों में अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो समाज के प्रति भी जवाबदेही ऑर्गेनाइजेशन रखती है। तो किन के प्रति यह जवाबदेही है? तो हमारी जवाबदेही शेयर होल्डर्स के प्रति है, कस्टमर्स के प्रति है, सप्लायर्स के प्रति है, एम्प्लॉयज़ के प्रति है और गवर्नमेंट के भी प्रति है। इसलिए बिजनेस हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट etc. बिजनेस की जवाबदेही इन लोगों के प्रति कैसे है? तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कस्टमर के प्रति क्या जवाबदेही है? तो कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जो प्रोडक्ट मिले वो रीजनेबल प्राइस में मिलना चाहिए, उसी के साथ मार्केट में कंपटीशन फेयर होनी चाहिए। एम्प्लॉय के प्रति क्या जवाबदेही है? तो एम्प्लॉय को अच्छे वेजेस मिलने चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए
सरकार के प्रति क्या दायित्व है? तो सरकार को हम बराबर समय पर टैक्स दे, टैक्स की चोरी ना करे। इस प्रकार अनेक दायित्व अगर बिजनेस अच्छे से निभाता है तो उसका फायदा बिजनेस को भी होता है और समाज को भी होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट encourages research and development. There is need to change nature of principles of management due to change in business throughout the world. They need to change to cater the current needs of the business. हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं नोकिया का। एक ज़माने में नोकिया भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था, मगर बाद में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आई जिसको नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, और एंड्रॉयड एक्सेप्ट ना करने के वजह से नोकिया कंपटीशन से बाहर हुआ। आज वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन नहीं है। उसलिए हमें बदलाव के साथ चलना ज़रूरी है। टू कॉम्पीट विद द चेंजेस, द मैनेजर नीड टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कहा जाता है कि इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट आर अनएंडिंग प्रोसेस, यानी विकास एवं सुधार यह निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अगर हम हमारे कार्य में निरंतर विकास नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो हम आज के कट थ्रोट कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए सुधार हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और सुधार के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट कर कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाना पड़ेगा, अन्यथा हम कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। These guidelines help management to take comparison of used principles with the expected outcome. हमें देखना पड़ेगा कि हमने ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज किए इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बदलाव आया है। हमने जो एक्सपेक्ट किया है वह अचीव नहीं कर पा रहे होंगे, तो हमें हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल में बिजनेस के अनुसार बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर पाएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिसर्च का महत्व समझना होगा और निरंतर रिसर्च और डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना पड़ेगा। दिस वर्क्स ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स etc. रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें नए नए टेक्निक्स ढूंढने में मदद करती है। ये टेक्निक प्रोडक्शन के होंगे, ये फाइनेंस के होंगे, मार्केटिंग के होंगे या ह्यूमन रिसोर्सेज के होंगे। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने पर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नए नए बदलाव लाने में मदद होगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। Principles of management helps to coordinate and control. समन्वय और सहयोग ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्क एज गाइडलाइन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. One of the major challenge in organization is to create coordination and cooperation among different employees working in different department. अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ में समन्वय और सहयोग लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यह न ला पाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो हमें सहयोग और समन्वय प्रस्थापित करने में मदद करते हैं। अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सही उपयोग न कर पाए तो हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट में समन्वय और सहयोग नहीं ला पाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अप्रोच. With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. In simple language, objective approach means decisions taken on the basis of facts.
ऑब्जेक्टिव अप्रोच बिजनेस में ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस के डिसीजंस ये फैक्ट्स के बेस पे लिए जाते हैं। फिर ये डिसीजंस लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? तो पहले तो हमें बिजनेस के सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है यह ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। उसी के साथ अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसके रूट कॉजेस क्या है यह भी हमें ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे मैनेजर्स की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी और वो डिसीजन ले पाएंगे। इट इज नेसेसरी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मैनेजर्स सो दैट दे कैन टेक नेसेसरी डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज मीट चेंजिंग एनवायरनमेंट। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अगर हम यह परिवर्तन समझ नहीं पाएंगे तो हम हमारे बिजनेस में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड changes taken place in business environment and we need to change accordingly। अगर हम परिवर्तन की तरह हमारे बिजनेस में बदलाव लाएंगे तभी हम हमारे बिजनेस को सक्सेस कर पाएंगे। उसलिए हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये जनरल गाइडलाइंस है, इसमें हमें ज़रूरत अनुसार मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे तभी हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। इस पार्ट में हमने सीखा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगले भाग में हम सीखने वाले हैं हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।